السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک ایسے معاملے پر بات کریں گے جسے کچھ لوگ لاعلمی بدنیتی کے بنیاد پر پروپیگنڈا کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت پر طعن و تشنیع کرنے والوں کا یہ اعتراض کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح کم عمری میں ہوا، دراصل حقائق کو مسح کرنے کی ایک کوشش ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم اس کے پس منظر، اس دور کے رواج اور تاریخی حوالوں کو سامنے رکھ کر اس جھوٹ کا پردہ جا کریں گے انشاءاللہ الرحمن۔ آئے ہم سب مل کر یہ ویڈیو دیکھیں۔ لوگ ہمیشہ رہے ہیں جن کی خواہش اسلام کو مٹانا ہے۔ نبوت کے ابتدائی سالوں میں، بعد کی صدیوں میں اور آج تک بھی ہمیں انٹرنیٹ پر ہر جگہ ایسے اسلاموفوبز نظر آتے ہیں۔ وہ اسلام میں خرابیاں ڈھونڈتے ہیں اور مسلمانوں کو اپنے مذہب سے دور کرنے کی بہت کوشش کرتے ہیں۔ ایک سوال وہ ہمیشہ استعمال کرتے ہیں اور سال ہر سال ہر ممکن موقع پر اسے سامنے لاتے ہیں۔ انشاءاللہ آج ہم اس سوال کا جواب بہت واضح انداز میں دیں گے۔ اب تک مختلف مذاہب کے لوگ ہمارے مدرسے میں آ چکے ہیں۔ ایتھیسٹ آئے، عیسائی آئے، بلکہ اسپیگیٹی مذہب کے ماننے والے بھی آئے۔ ہر طرح کے لوگ آ چکے ہیں۔ انہوں نے اپنے سوالات کے جواب آئے اور چلے گئے۔ ہمیں خود پر بھروسہ نہیں، ہمارا بھروسہ قرآن حکیم اور پڑھی گئی اسلامی کتابوں پر ہے۔ تو وہ کون سی چیز ہے جس پر منافقین برسوں سے بات کر رہے ہیں اور اسلاموفوبز بھی اسے بہت زیادہ دہراتے ہیں؟ چونکہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی شادیاں کی تھیں، لہٰذا وہ انہیں معاذ اللہ ایک عیاش شخص کہتے ہیں۔ ان کے مطابق اگر وہ ایسے نہ ہوتے تو اتنی زیادہ شادیاں نہ کرتے۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر اسلام میں زیادہ سے زیادہ 4 عورتوں سے شادی کی اجازت ہے تو پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وقت میں 4 سے زیادہ بیویاں کیوں رکھی؟ سننے میں یہ ایک بہت مشکل سوال لگتا ہے، مگر ایک بات طے ہے کہ یہ ایک توہین آمیز الزام ہے۔ کیسے؟ اس کا علم ہمیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ کر ہوتا ہے۔ اگر ہم ان کی زندگی کا صرف ایک حصہ دیکھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ہم غلط خیال اپنا لیں، لیکن اگر ہم اسے مجموعی طور پر مختلف پہلوؤں سے دیکھیں گے تو سچ ظاہر ہو جائے گا۔ آئیے پہلے یہ سوال پوچھتے ہیں، لڑکے کس عمر میں بالغ ہوتے ہیں؟ عموماً 12 سے 14 سال کی عمر میں، ٹھیک ہے؟ ظاہر ہے اس وقت اس علاقے میں اور بھی جلدی ہو جاتے تھے۔ فطری طور پر مردوں میں جنسی خواہش بلوغت سے لے کر 40 سال کی عمر تک زیادہ ہوتی ہے۔ 40 سال کے بعد اس میں کمی آ جاتی ہے۔ جب ہم پہلی شادی کے وقت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر دیکھیں تو 25 سال تھی۔ اس زمانے اور علاقے کے حساب سے یہ کافی لیٹ شادی تھی۔ اور 25 سال کی عمر میں کیا ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک 16 سال کی لڑکی سے شادی کی تھی؟ ان کی پہلی بیوی خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر کیا تھی؟ 40 سال، اور وہ بیوہ بھی تھی۔ انہوں نے ایسی عورت کو چنا جن کی پہلی شادی ہو چکی تھی اور ان کے 3 بچے بھی تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھی خدیجہ رضی اللہ عنہا نے بھیجا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال اور اخلاق مشہور تھا۔ وہ ایک باحیا اور ایماندار شخص تھے۔ کسی نے بھی ان کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں سنا تھا۔ ہر ایک کو ان پر اتنا بھروسہ تھا کہ وہ انہیں الامین یعنی ایماندار کے نام سے پکارتے تھے، یہاں تک کہ ان کے دشمن بھی ان کے پاس بلا جھجک اپنی چیزیں رکھواتے تھے۔ لہٰذا ان کے لیے اپنی مرضی کی کسی لڑکی سے شادی کرنا بہت آسان تھا، مگر انہوں نے ایک ادھیڑ عمر عورت سے شادی کی، حالانکہ وہ عمر کے اس حصے میں تھے جب مرد کی جنسی خواہش بہت زیادہ ہوتی ہے۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال 65 سال کی عمر میں ہوا۔ تب تک انہوں نے کسی اور عورت سے شادی نہیں کی، اور اس وقت تک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 49-50 سال ہو چکی تھی۔ تو اپنی بھرپور جوانی کے 25 سال تک ان کی شادی صرف ایک عورت کے ساتھ رہی۔ اگرچہ ہماری ماں خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کئی مرتبہ انہیں دوسری شادی کا کہا تھا کہ اگر آپ کی خواہش ہے تو اس کو ضرور پورا کیجیے، مگر انہوں نے ہمیشہ انکار کیا۔ جب وہ بوڑھی ہو گئی اور خوبصورتی جاتی رہی، تب بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بیویوں کی تلاش کا نہیں سوچا۔ ان کے انتقال کے بعد 2 سال تک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سنگل رہے۔ تو کون صحیح الدماغ شخص یہ سوچ سکتا ہے کہ وہ ایک عیاش انسان تھے؟ نعوذ باللہ، اگر وہ واقعی ایسے ہوتے تو کیا یہ سب ان کی جوانی سے ظاہر نہ ہو جاتا، جب مردوں میں جنسی خواہش بہت زیادہ ہوتی ہے؟ لیکن ان کی زندگی تو اس کے الٹ تھی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی شادیاں جن کا یہ لوگ ذکر کرتے ہیں 50 سال کی عمر کے بعد ہوئی۔ پھر
उन शादियों के कई मुख्तलिफ वजूहात और फवायद थे, हम उन पर भी बात करेंगे, मगर उनकी जिंदगी हमें वाज़ेह तौर पर बताती है कि कोई भी शख्स उन पर अय्याशी का तौहीन आमेज इल्जाम लगाने की कोई वजह नहीं पा सकता। उन शादियों की क्या वजूहात थी, उनके पीछे क्या हिकमत थी। हम में बहुत से लोग वॉर मूवीज पसंद करते हैं, है ना। उन मूवीज में हम कबीलों और सल्तनतों के दरमियान शादियों का रवाज देखते हैं। मसलन स्कॉटलैंड के बादशाह की बेटी इंग्लैंड के बादशाह से शादी कर लेती है। ऐसी बहुत सी शादियां हुई हैं और तारीख में उसकी बेशुमार मिसालें मिलती हैं। तो आपके ख्याल में इसका क्या मकसद होता है? इत्तेहाद इसकी एक अहम वजह है। हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ ऐसे कबीलों की औरतों से शादी की जो उनके दुश्मन थे। क्या आप जानते हैं उन शादियों के बाद क्या हुआ था? मुआशरे का कोई लीडर अपनी बेटी की शादी पैगंबर से करने के बाद क्या वो उसके खिलाफ जंग करेगा? हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादियों के पीछे एक हिकमत ये है, रियासती ताल्लुकात, स्ट्रेटेजिक रिलेशंस। हमारी माँ जवेरिया रजी अल्लाह अन्हा इसकी एक मिसाल है। और अगर कोई दुश्मनी ना भी होती तब भी उस वक्त ये कबायली कल्चर था। अमूमन मुख्तलिफ कबीलों के एक दूसरे के साथ खुशगवार और अच्छे ताल्लुकात नहीं होते थे। वो हमेशा मोहतात और दिफाई हालत में रहते थे। और चूंकि हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बुनियादी मिशन पैगाम पहुंचाना था, लिहाजा शादी के जरिए लोगों तक पैगाम उनके लिए एक हिकमत आमेज और माकूल इक़दाम था। दूसरी हिकमत, जब भी जंगें होती हैं तो मर्दों की आबादी तेजी से कम होती है। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में इस वजह से और कुछ दीगर वजूहात से बहुत सी बेवाएं मौजूद थी। कुछ सहाबा की तरह हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ऐसी औरतों से शादी की जिन्हें तहफ़्फ़ुज़ की जरूरत थी। बेशक हमारे पैगंबर ने ज्यादातर शादियां बेवाओं के साथ की। क्या आप सोच सकते हैं कि एक अयाश शख्स 5 बच्चों वाली एक 50 साल की औरत से शादी करेगा? क्या ये समझ में आने वाली बात है? क्या इससे ये वाज़ेह नहीं होता कि ऐसी बातें करने वालों की नीयतें ठीक नहीं और वो मुखलिस नहीं है? अब आते हैं तीसरी और सबसे अहम वजह पर। क्या आपने इज़वाजुल मुहतरा की इस्तिलाह सुनी है? ये नाम पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों के लिए इस्तेमाल होता है। अगर आप सोचें तो खसूसन घर में हमारी तालीम पर कौन तवज्जो देता है? हमारी माएं, है ना। हम सोच भी नहीं सकते कि हम अपनी माओं से कितना कुछ सीखते हैं। उस वक्त उस जमाने की औरतों को भी इल्म हासिल करने की जरूरत होती थी, मगर चूंकि पैगंबर खुद एक एक को ये तालीम नहीं दे सकते थे और औरतें भी अपना हर मामला मर्दों और खसूसन पैगंबर से खुलकर नहीं कह सकती थी, लिहाजा उनके घर में औरतों का होना जरूरी था। उनकी बीवियां उनके हर एक अमल को देख और समझ रही थी, लिहाजा वो मजहब के तकरीबन हर शोबे में काफी इल्म रखने वाली मुसलमान औरतें बन गई थी। फिर उन्होंने भी उम्मत की तमाम माओं को तालीम देना और मजहबी मामलात सिखाना शुरू कर दिया था। दूसरे अल्फाज में उस जमाने में औरतों के लिए प्राइवेट स्कूल जैसा एक सिस्टम कायम हो गया था। अहादीस हमारे मजहब का एक इंतहाई अहम हिस्सा है, मगर उन्हें हम तक किसने पहुंचाया? पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर से बाहर की हदीसों को सहाबा ने पहुंचाया। मगर उन हदीस का क्या होता जो घर के अंदर बयान की गई थी? वहाँ तो सहाबा नहीं होते थे, खुसूसन वो अहादीस जो औरतों के खास मामलात के बारे में होती थी। किसने उन्हें बयान किया? उनकी बीवियों ने। इतनी अहम जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए कई बीवियों का होना जरूरी था जो अपने किरदार, शख्सियत, सलाहियतों, दिलचस्पियों और उम्र में एक दूसरे से मुख्तलिफ हों। शायद आपको सुनकर ताज्जुब हो, मगर तकरीबन आधे इस्लामी अहकामात और मालूमात हमारे पैगंबर की बीवियों से हम तक पहुँचे हैं। हमारी माँ आयशा रजी अल्लाह अन्हुमा ने हजरत उमर और अबू बकर रजी अल्लाह अन्हा की मजमूई बयान करदा अहादीस से ज्यादा हदीसें बयान की है। मुख्तसर ये कि हमारे पैगंबर की कई शादियों की ये 3 बुनियादी वजूहात हैं। अगर आपको याद हो तो एक ये सवाल भी पूछा जाता है, हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही वक्त में 4 से ज्यादा बीवियां कैसे रख ली? हालांकि इस्लाम में मर्दों के लिए ज्यादा से ज्यादा 4 शादियों की इजाजत है, मगर हमें ये जानना होगा पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किसी भी मुसलमान से ज्यादा जिम्मेदारियां थी। मसलन शायद आपको हैरत हो, मगर उनके लिए तहज्जुद की नमाज फर्ज थी, यानी उन्हें आधी रात को फजर की नमाज से भी पहले तहज्जुद पढ़ने के लिए नींद से जागना पड़ता था। अगरचे हमारे लिए ये नफल है, मगर उनके लिए ये फर्ज था। इसी तरह हमारे जिक्र किए गए इन 3 कामों की तकमील, खसूसन तीसरे काम यानी औरतों के लिए फीमेल टीचर्स तैयार करने की खातिर उनके लिए 4 बीवियों की हद नहीं रखी गई थी, बल्कि ये तो उनके लिए एक अजाफी बोझ था, क्योंकि अब उन्हें 4 से ज्यादा बीवियां संभालने और सबके साथ बराबर के सलूक करने की जिम्मेदारी भी सौंप दी गई थी। नतीजतन जब हम उन तमाम बातों पर गौर करते हैं तो ये हकीकत हमारे सामने आती है। इस्लामोफोब्स को भी दावा कर देते हैं। अगर आप उस दावे को सरसरी तौर पर देखें और वो हमें दिखाना भी इस तरह चाहते हैं तो वो हमें बड़ा
माकूल दावा लगेगा, मगर जब हम तफसील में जाएं और मजमूई सतह पर देखें तो हमें इल्म होगा कि उसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। इस्लाम के दुश्मनों के तमाम दावों में यही मुश्तरक पहलू है। मुख्तसर ये कि हमें मजहबी मालूमात इल्म वाले काबिल भरोसा लोगों और जरिए से सीखनी चाहिए, उन लोगों से नहीं जो इस्लाम के दुश्मन हैं, जो बेबुनियाद तासुबात रखते हैं। या तो हम तलाश करें और सच को पालें या फिर इन लोगों से धोखा खाते रहें। नाज़रीन किराम, आपने देखा कि कैसे ये एतराज़ महज़ तारीख़ी सियाक़ व सबक को नज़रअंदाज करके किया जाता है। उस वक़्त के अरब मुआशरे में बुलूग़ की बुनियाद पर निकाह एक आम रिवाज था। इसमें कोई भी मायूब बात नहीं समझती जाती थी। मुस्तशरिकीन और मारिफ से मुतासिर कुछ लोग, जिनकी नीयत सिर्फ इस्लाम के शबीह को दागदार करना है, वो इस दौर के मायारात को आज के दौर पर लागू करने की कोशिश करते हैं, जो कि सरासर इल्मी बदनीयती है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का निकाह और फिर रुख़सती उनके वालिद गिरामी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रज़ामंदी और इस वक़्त के अरब मुआशरती तकाज़ों के आईन मुताबिक थी। ये एतराज़ करने वाले दरअसल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के इस अज़ीम पहलू को नहीं देखते पाते, जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़वातीन के हुकूक, तालीम और तरबियत के लिए जो इनक़िलाब बर्पा किया। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा तो वो हस्ती है जिनसे उम्मत ने दीन का एक बड़ा हिस्सा सीखा। आखिर में ये कहूँगा कि ऐसे शुकूक व शुबहात फैलाने वालों का मकसद ईमान कमज़ोर करना होता है। हमें चाहिए कि हम तारीख़ को सिर्फ एक रूह से न देखें, बल्कि उसे मुकम्मल पस मंज़र के साथ समझें। अपने जज्बात पर काबू रखें, इल्मी जवाब दे और प्रोपेगेंडा का हिस्सा बनने के बजाय हकीकत तक पहुँचने की कोशिश करें। ताला हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा को सही मानों में समझने और इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।